یہ جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں یہ جب کھلیں گی تو سیاحت اس سے ٹھیک ٹھاک جو ہے مثبت اثر پڑے گا۔ بینک نے مجھے بتایا کہ میرے ذمے واجب الادا 30 لاکھ قرض پہلے ادا کیے بغیر ان میں 15 سے 35% مؤثر کنٹرول کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اڑان کو سطح پر رکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ رواں برس کے پہلے 4 ماہ میں کیٹرنگ انڈسٹری کی آمدنی میں 31% سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی۔ ہم بہتر سروس کے تجربے، سروس موڈ اور سروس کنیکشن کے ذریعے فی گاہک لین دین کے خرچ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ میری یونیورسٹی نے چینی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری چینی صدر شی جن پنگ کے جوابی خط پر گفتگو کے لیے ایک سیمینار منعقد کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں مستقبل میں یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بیجنگ اور پاکستان کے دیگر تحقیقی اداروں اور یونیورسٹیوں کے مابین ایک پل کا کردار ادا کروں۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ہر اتوار کی شام 6:30 بجے پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں 2 معزز مہمان تشریف لائے ہیں، جناب حنیف خان جو کہ الحبیب بینک لمیٹڈ کے مین چیف ریپرزینٹیو ہیں، اور ڈاکٹر ساجد خورشید جو کہ ہیڈ آف ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کنیڈین انٹرنیشنل اسکول بیجنگ اور تsinghua یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر ہیں۔ سب سے پہلے پاک چائنا ریسپانس۔ پاکستان نے کووڈ-19 کی روک تھام اور کنٹرول کے لیے مارچ میں بین الاقوامی پروازوں کی معطلی کے بعد دوبارہ پروازیں شروع کی، جس کا مقصد بیرون ملک پھنسے ہوئے ہزاروں پاکستانیوں کو جلد سے جلد وطن واپس لانا ہے۔ میرے خیال میں چین میں رہنے والے کوئی بھی پاکستانی اس وقت پاکستان جانا نہیں چاہیں گے، کیونکہ اگر وہ پاکستان جاتے ہیں تو ان کا واپس چائنا آنا مشکل ہے۔ انٹرنیشنل فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے کاروباری سرگرمی پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے، جس کی بنیادی وجہ کرایے میں 2 سے 6 گنا تک کا اضافہ۔ اب چونکہ انٹرنیشنل فلائٹس کھل رہی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ کرایے میں نمایاں کمی واقع ہوگی، جس سے کاروباری سرگرمی کو دوبارہ شروع کرنے کا موقع ملے گا۔ بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے علاوہ پاکستان میں کچھ صنعتوں اور دکانوں نے اپنے نقصانات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ اب بحال ہو چکا ہے، لیکن کاروبار بہت اچھا نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے 6 مہینوں میں چین سے کوئی کنٹینر نہیں بھیجا ہے، جبکہ ہم 6 مہینوں میں کم از کم 12 کنٹینر سامان لاتے تھے۔ چین نے پہلے مرحلے میں منظم انداز میں کام اور پیداوار کی بحالی کو فروغ دیا اور اب تمام معاشی اعداد و شمار میں بہتری آنے لگی ہے۔ چین کی وزارت خزانہ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مئی میں صنعتی اور تجارتی شعبوں سے حاصل شدہ ٹیکس محصولات گزشتہ سال کے اسی عرصے میں تقریباً اسی سطح پر آ گئے ہیں، جبکہ جنوری سے اپریل تک اس میں 33.5% کی کمی ہوئی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کام اور پیداوار کی بحالی آہستہ آہستہ عام سطح پر آ گئی ہے۔ کووڈ-19 کے پھیلنے کے بعد چین دنیا کے ابتدائی ممالک میں سے ایک ہے۔ چین نے بڑے پیمانے پر کام دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ کام دوبارہ شروع کرنے کی بنیادی وجہ چین کی متعدد دوستانہ پالیسیاں ہیں۔ جنوب مغربی چین کے صوبہ یونان کے ایک باغ میں وبا کی وجہ سے برآمدی پھل کو مقامی مارکیٹ میں فروخت کے لیے منتقل کر دیا تھا، جس نے مارکیٹ میں قیمت کو کم کر دیا تھا۔ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے دوران موسمی 6 یا 7 یوان کی 1 جن یعنی آدھا کلو بیچتے تھے، لیکن اب یہ صرف 4 یا 5 یوان میں ہی بیچ سکتے ہیں۔ موسمبی اچھی قیمت پر نہیں بیچ سکتے اور یہ قرض ختم ہونے والا ہے۔ پھلوں کے کاشتکاروں کو عام طور پر کم سرمایہ کا مسئلہ درپیش ہے۔ بینک نے مجھے بتایا کہ میرے ذمے واجب الادا 30 لاکھ قرض پہلے ادا کیے بغیر براہ راست اس کی تجدید کی جا سکتی ہے۔ مئی میں بینک نے ہمیں مزید 10 لاکھ قرض دینا جاری رکھا۔ کووڈ-19 کی روک تھام اور کنٹرول کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چین نے 7 بیچوں میں ٹیکس میں کٹوتی اور فیس میں کمی کی 27 پالیسیاں متعارف کروائی ہیں اور مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے وبائی امراض کی روک تھام اور کنٹرول کرنے کے لیے نئی ترجیحی ٹیکس پالیسیوں کا ایک سلسلہ متعارف کرایا ہے، جس میں اس وبا کے معاشی اور معاشرتی اثرات کے بہت سارے پہلو شامل ہیں۔
ٹیکسوں اور فیس میں کمی کے لیے مرحلہ وار اور مطلوبہ پالیسیوں کا مطالعہ اور ان کا تعارف جاری رکھیں. مخصوص صنعتوں میں کام اور پیداوار کی بحالی کی حمایت پر توجہ دیں اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو مشکلات پر قابو پانے میں مدد کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے تعمیراتی شعبہ اور اسٹیل کی صنعت سب سے پہلے کھل رہی ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹی دکانیں اور آخر میں شاپنگ مالز بھی کھلیں گے. تو اس طرح کے اہتمام کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پاکستانی حکومت کے لیے بھی یہ بہت مشکل فیصلہ رہا ہے. بہت سارا دباؤ تھا ہر طرف سے. پاکستانی حکومت اس بات پہ بہت زیادہ ان کا ایک فوکس رہا ہے کہ جو غریب طبقہ ہے معاشرے کا، ان کا جو روزگار ہے وہ ٹھیک ایک آدھ مہینے کے لیے تو وہ بغیر روزگار کے رہ سکتے ہیں 2 مہینے کے لیے، لیکن اگر اس کو آپ زیادہ دیر تک روزگار سے آپ وہ نہ کریں، روزگار نہ کر سکیں تو وہ ان کو خاصا مشکل ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کھول لیا جائیں، کاروبار کو آہستہ آہستہ کھول لیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ کہ پاکستانی لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو شعبات کھل گئے ہیں اس میں جا کے وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ نے SOPs دے دیے ہیں وہ ان کے تحت کام کر سکتے ہیں. جب پاکستان کی انٹرنیشنل فلائٹس دوبارہ شروع ہوں گی تو کون سی صنعتیں سب سے زیادہ فوائد حاصل کر سکتی ہیں؟ یہ جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں یہ جب کھلیں گی تو سیاحت اس سے ٹھیک ٹھاک جو ہے مثبت اثر پڑے گا. ہوٹلز وغیرہ وہ جو صنعت ہے اس میں ٹھیک ٹھاک جو ہے اس پہ اچھا اثر پڑ سکتا ہے. اثر تو سب کے اوپر اچھا پڑے گا، سارے صنعت ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایسی ہیں جس فوری طور پہ ان کو فائدہ ہوگا. ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں پاک چائنا ٹریڈ. پچھلی پاک چائنا ٹریڈ قسط میں ہم نے پلانٹ پروٹیکشن ڈرونز کے فوائد متعارف کروائے. تو پلانٹ پروٹیکشن ڈرونز کے آپریشن کے دوران کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ کیا یہ چھوٹا ہو سکتا ہے تاکہ زیادہ جگہ نہ گھیرے؟ صارفین کی تعداد کافی زیادہ ہے، اس میں کچھ پوشیدہ خطرات ہوں گے. ڈرون سنگین فضائی مداخلت کا سبب بنتا ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے یقیناً کچھ خدشات ہوں گے. چین میں پلانٹ پروٹیکشن ڈرون کی ڈیولپمنٹ کا مسئلہ اور تجزیہ کے عنوان سے لان جوبن اور دیگر کا ایک مقالہ شائع ہوا جو چائنا نیشنل پریسیڈنٹ ایگریکلچر ایروسپیس ایپلیکیشن ٹیکنالوجی انٹرنیشنل جوائنٹ ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر اور چیف سائنسدان ہیں. اس مقالے میں کہا گیا کہ پودوں کی حفاظت والے ڈرون کم اونچائی اور کم مقدار میں چھڑکنے کے طریقے استعمال کرتے ہیں. دستی اور میکینیکل چھڑکاؤ کے طریقوں کے مقابلے میں ان میں 15 سے 35% مؤثر کنٹرول کا اضافہ دیکھا گیا ہے. تاہم پلانٹ پروٹیکشن ڈرون میں بھی کم وزن اٹھانے، بیٹری کی کم لائف اور اسپرے کے بہاؤ جیسے مسائل ہیں. تو اسے کیسے حل کیا جائے؟ بیٹری کی لائف اور صلاحیت پوری صنعت کی ترقی کے لیے ایک رکاوٹ ہے. چونکہ سنگل فلائٹ ٹائم زیادہ لمبا نہیں ہے، لہٰذا مسلسل کام کرنے کے لیے مزید بیٹریاں درکار ہوتی ہیں. جیسے ہی کیڑے مار ادویات اور بیٹری کو تبدیل کیا جائے گا تو بنیادی طور پر بغیر کسی تاخیر کے یہ فوری طور پر اڑان بھرے گا اور کام شروع کر دے گا. ہر بار جب یہ 20 لیٹر وزن اٹھاتا ہے تو یہ 10 منٹ سے زیادہ پرواز کر سکتا ہے. پرواز کا سب سے طویل دورانیہ 11 منٹ ہے جب یہ پوری طرح سے بھری ہو، لیکن اگر یہ خالی ہے تو یہ 28 منٹ کا ہو سکتا ہے. اگر وزن کی گنجائش زیادہ ہے تو واپسی اور لینڈنگ کا وقت کم ہو جائے گا. ہر ایک تیز رفتار اور بڑے پیمانے پر ڈرون حاصل کرنے کی سمت بڑھ رہا ہے. ڈرون کے بہاؤ کا انحراف زمینی مشینری سے یقیناً بڑا ہوگا، کیونکہ آخر یہ ایک فضائی سپرے کرنے والا ہے اور ماحول سے متاثر ہوتا ہے. اڑان کو سطح پر رکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں. پہلا یہ کہ ماحولیاتی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب ڈرون کیڑے مار دوا کا چھڑکاؤ کرتا ہے. مثال کے طور پر جب درجہ حرارت صبح 10 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان ہوتا ہے تو اس کو چلانے کی سفارش نہیں کی جاتی ہے اور اس کی رفتار ہوا کی 3 سطحوں سے تجاوز نہیں کر سکتی. دوسرا یہ کہ پرواز کے دوران ڈرون میں خود ہی ایک رڈار ہوتا ہے جو زمینی پرواز کے حصول کے لیے فصل کے علاقے کی اونچائی کے مطابق
अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। कम से कम सतह ड्रोन के नीचे पतल कनोपी से सिर्फ आधे मीटर की दूरी पर होती है। तीसरा ये कि जब ड्रोन छिड़काव करता है तो सिलिकॉन ऑयल को शामिल किया जा सकता है, लिहाजा वो फसल से बेहतर तौर पर नथी हो सकता है और बहाव कम हो सकता है। ड्रोन्स को कैसे कंट्रोल किया जाए? कुछ मुजरिम भी जराइम के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कंट्रोल ड्रोन्स हैं जिनमें रेडार और रेडियो का पता लगाने के लिए काउंटर मैयर प्रोडक्ट्स शामिल हैं। मिसाल के तौर पर जब ड्रोन आता है तो उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए फौरी तौर पर शनाख्त किया जा सकता है और फिर उसे अपने कब्जे में ले लिया जाता है। अगर ज़रूरत हो तो ड्रोन को नेट से पकड़ा जा सकता है। एक हकीकी नाम की तौसीक का निज़ाम, कंट्रोल सिस्टम और ऑनलाइन शेड्यूलिंग सिस्टम मौजूद हैं। जब तक किसी मखसूस इलाके में ड्रोन का ऑपरेशन किया जाता है, हम उसके मकाम को मालूम कर सकते हैं कि कौन ऑपरेट कर रहा है और मौसर तरीके से इस बात को यकीनी बनाएगा कि ड्रोन महफूज रियासती कंट्रोल में है। ड्रोन में एक खुदकार सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम मौजूद होता है। हम उसकी पोजीशन वाज़े तौर पर जान सकते हैं। एक बार जब वो नो फ्लाई जोन में दाखिल हो जाए तो वो ड्रोन उतर नहीं सकता है, लिहाजा परवाज के इलाके को शुरू ही से कंट्रोल किया जाता है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में चीन के प्लांट प्रोटेक्शन ड्रोन्स की मौजूदा सूरत हाल कैसी है? हम पहले ही बहुत से ममालिक जैसे जापान, जनूबी कोरिया और जनूब मशरकी एशिया के कुछ ममालिक को बरामद कर चुके हैं। अब हमारी सालाना बरामदात तकरीबन 10,000 यूनिट हैं। इस वक्त जनूब मशरकी एशिया के बहुत से ममालिक जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया को बरामदात निस्बतन आसानी से जारी हैं। ये अब भी पाकिस्तान को बरामद करने के लिए कानूनी रस्मी तरीक़ाकार का मामला हो सकता है, लेकिन हकीकत में कारोबारी गुफ्तशुनीद पुख्ता और कामिल रही है। पाकिस्तान में ड्रोन स्प्रे की इजाज़त नहीं है, लिहाजा पॉलिसी और ज़ाब्ते की भी ज़रूरत है। पाकिस्तानी फरीक बशमूल सिफारत खाने की तरफ से मैच मेकिंग का अमल जारी है। हम भी बढ़ चढ़ कर ताउन करना चाहते हैं। इस दौरान हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि पाकिस्तानी अफराद को इसमें महारत हासिल करने के लिए तरबियत दी जाए और ये तरबियत पाकिस्तान में दी जानी चाहिए। हो सकता है कि प्लांट प्रोटेक्शन टीम के पास 2 ड्रोन्स हों, एक ड्रोन के लिए एक ऑपरेटर और दूसरा ग्राउंड का अमला जो 2 या 3 ड्रोन्स का इंतजाम संभाल सकता हो। लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी शायद ये इतना मैच्योर शायद सेटअप अभी भी नहीं है। रेगुलेटरी रिजीम के हवाले से अगर हम बात करें तो शायद इतना अभी क्योंकि इस्तेमाल इतना नहीं है। जैसे जैसे इस्तेमाल बढ़ता जाएगा तो हुकूमत या जो रिलेटेड इदारा है हुकूमत का, वो उससे जो भी तजुर्बा हासिल करेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो जो SOPs हैं वो रिफाइन होते जाएंगे। और मैंने ये समझता हूँ कि ऐसे कोई चैलेंजेस या कोई ऐसी मुश्किलात हो सकती हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी को चाइना से पाकिस्तान में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हमारे यहाँ इदारे ऐसे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे छोटे लेवल पे ड्रोन्स तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम उन इदारों को बेहतर तौर पे पॉलिश करें। अब हम CPAC में एक रिपोर्ट देखते हैं। 2020 में नमूनिया की नई वबा से मुतासरा हर शोबा हाय जिंदगी को मुख्तलिफ मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। 29 मई को चीन की कौंसिल बराए फरोग बैनुल-अक़वामी तिजारत ने कैटरिंग सर्विस इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए चीन के शहर बीजिंग में कैटरिंग इंडस्ट्री की आला मयार की तरक्की को फरोग देने के लिए टेक अवे कारोबार के हवाले से एक रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस और माहिरीन के सिम्पोजियम का इनेकाद किया। रवां बरस के पहले 4 माह में कैटरिंग इंडस्ट्री की आमदनी में 31% से ज्यादा की कमी वाक़ हुई। वबा से निमटने की सूरत हाल में इज्तिमाई खाने की इजाजत नहीं है, इसलिए किसी भी इंटरप्राइजर के लिए मुसाबकती कारोबार हासिल करना मुमकिन नहीं। अखराजात जैसे किराया, अमले की तनख्वाह और खामाल की खरीदारी के लिए लागत नागुज़ीर है। लागत को पूरा करने के लिए डाइन इन सर्विस के जरिए पैसे की रवानी नहीं है। वबाई सूरत हाल के पेश नज़र कैटरिंग कंपनियों के लिए टेक अवे सर्विस की वजह से मजीद मौके खुले हैं।
मल्टी चैनल या मल्टी मोड ऑपरेशन के नुक्ता नजर से टेक अवे सर्विस वाकई इन केटरिंग कारोबारी इदारों के लिए कुछ खतरा कम कर सकती है। खास तौर पर वबा के बाद के दौर में अवाम कुछ नफ्सियाती अवामिल से मुतासिर हो सकते हैं और तवील मुद्दती एतबार से डाइन इन सर्विस भी मुतासिर होगी। मेरी राय में मुस्तकबिल में मुख्तलिफ केटरिंग कारोबारी इदारों के लिए कुछ हंगामी खतरात के मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की केटरिंग सर्विस फराहम करना एक अहम अक़दाम है। ये मत समझें कि टेक अवे फास्ट फूड की एक कम दर्जे की सर्विस है। हम बेहतर सर्विस के तजुर्बे, सर्विस मोड और सर्विस कनेक्शन के जरिए फी गाहक लेन देन के खर्च को बेहतर बना सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर टेक अवे के अदादोशुमार मौजूद होते हैं। इन अदादोशुमार की बुनियाद पर हम सार्फिन की तलब का बेहतर तजिया कर सकते हैं। इन टेक अवे सर्विस सार्फिन को तवील मुद्दती सार्फिन के ग्रुपों में तब्दील कर सकते हैं और करीबी राब्ता कायम कर सकते हैं। टेक अवे बिजनेस कैटरिंग इंटरप्राइजेस के लिए आहिस्ता आहिस्ता मुनाफा बख्श अंदाज में तब्दील होता जा रहा है। चीन कौंसल बराए फरोग़ बैनुल-अक़वामी तिजारत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट कैटरिंग इंडस्ट्री की आला मयार की तरक्की पर टेक अवे बिजनेस के असरात के बारे में तहकीक के मुताबिक चीन के पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में टेक आउट सर्विस के सार्फिन तक रसाई की शरह 96.31% तक पहुंच चुकी है। पिछले 3 बरसों में तमाम नमूना शहरों की कुल आमदनी में टेक अवे सर्विस की शराकत की शरह साल ब साल बढ़ती आई है, जो 2019 तक 17.44% तक पहुंच गई है। टेक अवे सर्विस के शोबे में पाकिस्तान चीन से क्या सीख सकता है? मुस्तकबिल में इस हवाले से चीन और पाकिस्तान क्या ताअवुन कर सकते हैं? शुरू में चीन में फोन के जरिए टेक अवे ऑर्डर किया जाता था, लेकिन जब इंटरनेट दस्तयाब हुआ तो कारोबार फौरन ही तेजी से बढ़ा। कारकर्दगी में तेजी से इजाफा हुआ और लागत भी कम थी। मुमकिन है कि इब्तिदा में पाकिस्तान में टेक अवे सर्विस मुतनव्वो हो, जैसे रवायती फोन कॉल्स का इस्तेमाल वगैरह। आहिस्ता आहिस्ता कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए गए और जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए इस केक को बड़ा किया गया। चीन के टेक अवे केटरिंग प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा फायदा उसकी तकनीकी तामीर, ऑपरेशन मोड और ऑपरेशन टीम के पूरे सेटअप का है। लिहाजा चीन जैसी गाली मार्केट से फायदा हासिल करने के बाद ये निस्बतन नए मुमालिक में एक बहुत ही पुख्ता ऑपरेटिंग सिस्टम लाएगा। लेकिन ये मकामी प्लेटफॉर्म मकामी मार्केट की सूरत हाल के हवाले से बेहतर समझ बूझ रखते हैं, जिसमें ये भी शामिल है कि किस किस्म के सार्फिन पर इन्हें तवज्जो देनी चाहिए और किन केटरिंग फराहम करने वालों से इन्हें राब्ता पैदा करना चाहिए। दोनों का मजमुआ मकामी मार्केट की तलब को तेजी से पूरा कर सकता है। पाकिस्तान में मजदूरी की लागत निस्बतन कम है। टेक अवे सर्विस तैयार करने के अमल में रसद और डिस्ट्रीब्यूशन के अखराजात बहुत कम हैं। ये यूरोप और अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुमालिक के मुकाबले में टेक अवे बिजनेस को आगे बढ़ाने में तरक्की पजीर मुमालिक का एक अहम फायदा है। यहाँ कैटरिंग इंडस्ट्री की तरक्की का लेवल अब भी निस्बतन पसमानदा है। अगर टेक अवे कारोबार को बड़े पैमाने पर टेक अवे प्लेटफॉर्म के जरिए मुतारिफ या जदीद बनाया जाए तो ये कैटरिंग इंडस्ट्री को मुअस्सर तरीके से वसी और मजबूत बना सकता है। कि अभी तो शुरुआत है इस इंडस्ट्री में, तो अभी शुरुआत है। इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो 2/3 जो आबादी है पाकिस्तान की वो नौजवान तबका है। ठीक है जी, नौजवान तबका आपको पता है वो जो भी नई चीज़ है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। तो वो आमतौर पे ये था कि अगर ख़वातीन घर पे हैं, फॉर एग्जांपल मुलाजमत नहीं कर रही, तो वो खाना जो है ऑटोमेटिकली ये था कि चले वो खाना बना लेंगे। अब ये है कि ख़वातीन भी मुलाजमत में ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन अब मुलाजमत में आना शुरू हो गई हैं। तो अब ये है कि एक ऑटोमेटिक चॉइस है कि आपने टेक अवे ही वो ऑनलाइन ऑर्डर ही करना, खास तौर पर शहरों में, बड़े शहरों में। नाज़रीन, अब हम देखते हैं सीपैक पायनियर। मेरी यूनिवर्सिटी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी चीनी सदर शी जिनपिंग के जवाबी खत पर गुफ्तगू के लिए एक सेमिनार मुनक्किद किया। मैंने अपने जज्बात के बारे में लिखा और सेमिनार में अपने ख्यालात का इजहार भी किया।
अमजद जरीन जो चीन की कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन स्टडीज में पीएचडी करने 2015 में चीन आए। उन्होंने चाइना इकोनॉमिक नेट की सहाफी को चीनी सदर शी जिनपिंग के यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी बीजिंग यूएसटीबी में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा को लिखे गए जवाबी खत के बारे में अपने जज्बात के बारे में बताया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने खत में चीन में ज़ेर तालीम दुनिया भर के बेहतरीन तलबा को खुशामदीद कहा और उन्हें अपने चीनी साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू करने की तरगीब दी। उनके बयान ने इसे बहुत मुतासर किया। अमजद जरी ने कहा कि जब वो चीन आए तो सबसे पहली बात जो सीखी वो वक्त की पाबंदी और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ है। चीनी लोग वक्त के बहुत पाबंद हैं और कभी देर नहीं करते हैं। हम वाकई वक्त की परवाह नहीं करते हैं। अगर मेरा कोई दोस्त दोपहर 3 बजे मुलाकात का वक्त तय करता है तो हम शायद 3:30 पर मिलें। हमारे मुआशरे में ये एक आम रुझान है। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार चीन आया, मेरे ट्यूटर ने मुझे दोपहर 2 बजे मुलाकात करने के लिए कहा, लेकिन मैं 2:10 पर गया। जब मैं उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आप 10 मिनट लेट हो चुके हैं और अगली बार आपको वक्त की पाबंदी करना होगी। मुझे ये सुनकर हैरत हुई। जब मैंने इस मामले के बारे में अपने सीनियर से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि आपको वक्त के बारे में बहुत मोहतात रहना चाहिए और किसी चीज या किसी भी एक्टिविटी में शिरकत के लिए देर से नहीं जाना चाहिए। तब से अब तक मैं वक्त की पाबंदी करता हूँ, जबकि चीन में ये मेरा चौथा साल है। दूसरा ये कि आमतौर पर अपने मुल्क में हम देर से सोते हैं और देर से जागते हैं, जिसकी वजह से मुझे काम के दौरान चक्कर आते हैं और नींद भी आती है। चीन में हमने हिफ्ज़ाने सेहत के बारे में सीखा है। जल्दी सोना और जल्द से जल्द उठना मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और मेरी सीखने की कारकर्दगी में भी बहुत बेहतरी आई है। अमजद जरीन का कहना था कि सेमिनार में जो गर्मा गर्म मौजू था कि दुनिया को चीन के बारे में मजीद बताएं जो आपने यहाँ देखा है। इसके बारे में बात करते हुए वो और उसके हमजमात बहुत जज्बाती हो जाते हैं। चीन में 4 साल कयाम के दौरान वो तेजी से होती तब्दीलियों के ऐनी शाहिद हैं। मुझे नहीं लगता कि चीनियों को जाती कारें रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत मौजूद है। आप इस तरह की आरामदेह सफरी सहूलत के साथ कहीं भी सफर कर सकते हैं। एक और चीज जो चीन में मुझे बहुत अच्छी महसूस होती है वो ये कि पूरे रमजान में यूनिवर्सिटी का बावर्ची खाना हमारी सहरी पकाने के लिए खुला रहता था। बसा औकात यहाँ तालीम हासिल करने वाले कलील मुद्दती तलबा चीनी खाना खाने के आदी नहीं होते हैं, लिहाजा ये बात काबिले गौर है कि यूनिवर्सिटी में उनके पास खुद अपना खाना पकाने के लिए एक बावर्ची खाना दस्तयाब है। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं चीनी खाने का आदी हूँ। मुझे हॉटपॉट और नूडल्स बहुत पसंद हैं। अमजद जरी ने रिपोर्टर को बताया कि वो चीन से डिग्री हासिल करने के बाद काम करने अपने आबाई शहर वापस जाने का इरादा रखते हैं और चीन में अपने तजुर्बात को पाकिस्तान में दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त इससे फायदा उठा सकेंगे। चीन में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग में जियोफिजिक्स में पीएचडी करने वाले माजिद खान चीन में रहने का इरादा रखते हैं। बेशतर तलबा चीन में अपने तजर्बे, मुताले और तहकीक के अलावा यहाँ की तर्ज जिंदगी में भी दिलचस्पी रखते हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे अहम बात यह है कि चीन और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनकी दोस्ती दुनिया भर में मशहूर है। चीन पाकिस्तानियों के लिए दूसरे घर की तरह है। हर कोई यहाँ राहत महसूस करता है और यकीन रखता है कि उनमें से बेशतर का यहाँ अच्छा मुस्तकबिल होगा। मैं चीन में आबाद हो जाऊंगा, ज्यादा अरसा यहाँ क़याम करूंगा, इस मशहूर यूनिवर्सिटी में मुलाजमत करूंगा और मुझे लगता है कि मैं मुस्तकबिल में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग और पाकिस्तान के दीगर तहकीकी इदारों और यूनिवर्सिटियों के माबैन एक पुल का किरदार अदा कर सकता हूँ। चीनी यूनिवर्सिटियों के कौन कौन से मज़ामी या मेजर पाकिस्तानी तलबा में ज़्यादा मकबूल होते हैं? उसमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर जो मज़ामीन हैं उसमें मेडिसिन का एक बहुत बड़ा तबका हमारे पास पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो MBBS करने के लिए, उसमें MBBS प्रोग्राम्स भी हैं, उसमें चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी शामिल हैं, बहुत बड़ा शामिल है। बीजिंग में बीजिंग कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं।
اسی طرح پورے چائنا میں جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں اس میں بہت زیادہ تعداد میں ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس. اس کے علاوہ انجینئرنگ دوسرے نمبر پہ آتا ہے. انجینئرنگ میں ہر طرح کے انجینئرنگ پروگرامس میں سول انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر انجینئرنگ تمام پروگرامس ہیں. باقی انڈسٹریز کے اندر خاص طور پہ میرے حال میں جو یونیورسٹی کے اندر جو ٹیچنگ ہے وہ یہاں سے جو ریسرچ وغیرہ کر کے ان کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ وہاں یونیورسٹیز میں, پاکستانی یونیورسٹیز میں یونیورسٹیز ان سے مستفید. پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے پاکستان میں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس چائنا سے پڑھنے کے بعد جب واپس پاکستان جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ اویلیبل ہے. ناظرین, پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلے اتوار شام 6:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اب اپنی میزبان نسرین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.